Okay, a particle is related following or being relativistic, okay, then the is energy relations are given by m0 square c4 p square c square. Okay, now I am saying is a ultra relativistic. Okay, ultra relativistic का मतलब क्या है कि your pc is greater than your m0 c square, रेस्ट मास एनर्जी से ज्यादा है। ये सब तो क्वेश्चन किए होंगे ना आपने स्टैटिकल में। Yes, sir. Okay, so if pc is greater than m0 c, okay, in that case you can write your e is equal to pc. Okay, so this becomes same relation what we do for massless particle, okay, like phonon. Okay, so this is the same relation, okay, as for massless particle. तो massless particle बोल दो या फर्मियन बोल दो, अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक केस, दोनों केस में आपका जो डेंसिटी ऑफ स्टेट आता है वो सेम आता है। So now you have the relation energy, okay, where you can also write P is equal to h cut k, so your E become h cut k c. Okay, now calculate first density of state, so in 3 dimension. So if I want to calculate density of state in 3 dimension, I know always that my total number of state, okay, total number of k states is equal to what, 4 by 3 pi q 2 pi upon l cube, okay, and multiply by 2 because we have electron. जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक टेस्ट में दो ही हो, okay, I am taking 2, okay, sometime they may give what is the degeneracy. Okay, so we on dependence on density of certain energy. Okay, so this become 8 upon 3 pi cube, okay, divided by 8 pi cube, l cube become b, okay, 8 cancel, pi cancel, so I got k cube b 1 by 3 and pi square. Okay, so this is the relation. Okay, now I can write this k state into e state by using this relation. Okay, so if I write, I'm calculating density of states, okay, in relativistic case, density of states. So if I do it further, okay, so ne, okay, nk को मैं लिखता हूँ ne, okay, in terms of ne number of states, I can write 1 by 3 1 upon pi square, and k we have v also here, and k is e upon h cut c, e upon h cut c, क्यूब करना है तो विल डू क्यूब. Okay, now you can see density of states g और d जो भी लिखना है उनको, density of states is dn upon d. Okay, so this become v upon pi square e square h cut cube c cut cube. Okay, so you can see this proportional to e square, g for relativistic case is proportional to e square. Now you know this density of state v upon pi square e square h cut cube c cube. Okay, now calculate average energy per particle. Okay, average energy per particle and pressure. Okay, so now second thing is I want to calculate energy per particle. Okay, okay, so because this is a degenerate gas किसको बोलते हैं? एक एनर्जी लेवल पे दो सेम नंबर ऑफ स्टेट्स आए. I'm not able to hear. पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे स्टेट भी जनरली अगर आपका जो केटी है, टेम्परेचर है केटी,
which is much below your Fermi energy. Okay, kbt is less than degenerate का पता क्या होता है आपका, kbt जो है less than your EF. Okay, so for degenerate gas I can write, okay, highly degenerate gas I can write that my average number of particle per state, that is Fe बोल दो, sometimes they say this is average number of particle also, that is equal to 1 when your E is less than EF. Okay, and this is 0 when your E is greater than EF. हाँ बोलिए. So now calculate. नहीं बोला Sir, at t equal to 0. T इक्वल टू 0 बोल दो. इन्होंने क्वेश्चन में T इक्वल टू 0 दिया नहीं, जो क्वेश्चन में लिया यहाँ से उन्होंने ये कंडीशन दे दिया है कि इस पर्टिकुलर केस में दिस वो एक ही बात हो गई. ओके, सो Okay, नाउ सर हाँ ये सर एनी का जो एक्सप्रेशन लिखा सर आपने, वो कैसा लिखा सर? और 3D भी एनी तो इसी में K का वैल्यू रख दिया ना हमने. E का Yes, K sir. का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ E रख दिया, एनर्जी ओके सर, ओके सर. डिस्पर्शन रिलेशन तो दे रखा है ना. ओके, नाउ यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज पार्टिकुलर एनर्जी. ओके, दैट विल बी व्हाट 1 अपॉन n 0 टू, अब की क्या जाएगा, EF तक ही जाएगा क्योंकि डिजेनरेट Yes, गैस है, EF तक ही जाएगा. ओके, एंड यू हैव पार्टिकल एनर्जी E. ओके, Fe तो 1 हो जाएगा वैसे भी, Fe यू कैन राइट Fe. ओके, G D. Okay, and you can solve it now for, इसको मिटा दूं. यस सर. yes, sir. यस सर. Okay, now put the value of here 1 by n 0 to EF. Fe is 1. Okay, because we are, our limit is between 0 to EF. G का वैल्यू मैंने अभी निकाला था. G का वैल्यू क्या था? V upon pi square h cut cube c cube v square. V upon pi square. Okay, E cube h cut cube c cube, ये था क्या? e square था. E square था. Okay, E square था. Okay, D. Now you can solve it 1 upon n. Okay, 0 to ये बन गया 0 to EF. ओके, ये बन गया आपका E क्यूब, E इंटू E क्यूब, और ये सब तो कांस्टेंट ही है. V पाई स्क्वायर h कट की C क्यूब, ये कांस्टेंट ही है. ओके, D. सो इफ यू सॉल्व दिस वन, ओके, यू विल गेट 1 by n. ओके, और n का वैल्यू मुझे पता ही है वैसे. n का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, दिस इज V अपॉन पाई स्क्वायर h कट क्यूब C कट क्यूब, and this become EF 4 upon 4. Okay, average number of particle, and if you put the value of this n, okay, so value of n is what, 3 pi square. Okay, h cut cube C cube V EF cube. अगर मुझे पार्टिकल फर्मी एनर्जी तक लेने हैं, then I can put EF instead of energy E, I can put EF. Okay, Yes sir. V upon pi square h cut cube C cube. Okay, EF 4 upon 4. ये कैंसिल हो जाएगा, पावर बच जाएगा. आई थिंक सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. द आंसर शुड कम 3 by 4 EF. This is the average particle energy in relativistic case. सर आपने ये n की वैल्यू कैसे लिया? n का वैल्यू हमने लिखा था ना शुरू में, स्टेट n और d का रिलेशन लिखा था मैंने, जब हमने n k को n की k की वैल्यू रख के हमने e में ट्रांसफॉर्म किया था ना. भी हमने लिखा था स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट, k स्टेट्स. ओके, वो k स्टेट को फिर हमने लिखा ne कि e एनर्जी तक टोटल कितनी स्टेट है. आपने लिखा था, नहीं लिखा था आगे? तो एक्सप्रेशन है, आपने तो उसको e को सीधा ef से रिप्लेस कर दिया है, मतलब ये n at ef होगा ना. अभी हम जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं EF तक जा रहे हैं ना. तो वो क्या था, जो ne का एक्सप्रेशन लिखा था, वो नंबर ऑफ स्टेट्स अप टू एनर्जी E. ओके, किसी भी रेफरेंस लेवल से स्टार्ट होके, जैसे सपोज कंडक्शन बैंड ऊपर मान रहे हैं,
तो वो एनर्जी क्या है, कंडक्शन बैंड से ऊपर जाके ई एनर्जी तक कितनी स्टेट है। ओके, कोई भी लेवल दे सकते हैं, किसी को रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर हमको जानना है ईएफ तक। ओके, तो Yes. ईएफ तक, तो वहां पे ई तक था, यहाँ ईएफ तक है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी ईएफ ही है। उससे आगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो पार्टिकल है ही नहीं। तो पार्टिकल क्या है, इस केस में पार्टिकल क्या है, मैक्सिमम जो है वो आपके ईएफ तक भरे हुए हैं। ऑल द पार्टिकल्स आर फिल्ड मैक्सिमम अप टू ईएफ। तो उसी एक्सप्रेशन में मैंने ईएफ लिख दिया डेंसिटी Yes, sir. स्टेट में। Understood. ठीक है। सर आपने वो हाँ, डीजेनरेट गैस का जो डेफिनेशन बताया सर, वो और एक बार डीजेनरेसी का भी आपको डीजेनरेट गैस सर, हाँ डीजेनरेट गैस सर, हाँ, डीजेनरेट डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस का यही डेफिनेशन है कि आपका जो केबीटी है, ओके, दैट इज मच मच लेस देन योर ईएफ। ओके, जितना टेम्परेचर कम होता है उतना ही क्वांटम इफेक्ट आ जाता है ना। और क्वांटम इफेक्ट जितना आता है वो गैस जिसमें ज्यादा क्वांटम इफेक्ट है उसको डीजेनरेट गैस बोलेंगे। टेम्परेचर ज्यादा है तो क्लासिकल गैस हो जाती है। सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सर मतलब सभी का एनर्जी हम ईएफ ही बोल रहे हैं मतलब। मतलब आपके पार्टिकल ज्यादा ज्यादा पार्टिकल सारे भी, जैसे आपको पता है ईएफ क्या होता है, फर्मी फर्मी लेवल क्या होता है। ओके, फर्मी लेवल अगर मैं इसको प्लॉट करूं ई से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, ओके, ये ईएफ, ओके, अगर ये टू जीरो पे है, अगर मैं इसी को मैं अगर टेम्परेचर पे करूं, दैट इज दिस वन। ओके, ये जो रेंज है, ओके, दिस रेंज इज केबीटी। और इस रेंज में ही आपका जो फंक्शन जो डिफरेंशिएशन होता है, ओके, इसी रेंज में ही तो जैसे कल हमने किया था कि आपने स्पेसिफिक निकाली थी, तो हमने खाली इस रेंज के पार्टिकल को ही लिया था। वो ऐसा क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ ये तो कांस्टेंट है, अगर मैं इसको डेल एफ डेल टी करूंगा, ओके, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो 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 हो जाएगा। ओनली इसी पार्ट का ही आपको डेल डेल अपॉन डेल टी मिलता है। यार कल मैंने डेल एफ अपॉन डेल ई निकाला था क्वेश्चन में, डेल अपॉन डेल ई, उसको आप लिख सकते हो डेल एफ अपॉन डेल ई बाय डेल टी अपॉन डेल ई। उसको टेम्परेचर की जगह पे एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हो, एनर्जी इज बेसिकली केबीटी। ओके, सो इसी में ये होता है, इसीलिए हम जो भी पार्टिकल लेते हैं वो इस फर्मी रेंज के आसपास के लेते हैं। ओके, तो सेम यहाँ पर भी अगर आपका फर्मी एनर्जी आपका ये बहुत टेम्परेचर बहुत कम है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, वो सारे यहीं आसपास ही घूमेंगे, इसके आसपास ही लेंगे। ओके, तो ये कंडीशन है। तो जब ये कंडीशन वैलिड होगी तब ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये आपका डीजेनरेट गैस के लिए, कि आपका टॉप मोस्ट जो फील्ड के गैस होगा वो ईएफ तक ही जाएगा, इसके आगे जाएगा ही नहीं। सर मतलब कम टेम्परेचर पे क्वांटम इफेक्ट होता है और हाँ, हायर टेम्परेचर पे क्लासिकल। यस यस। ओके, ओके सर। so now you have the average energy. Okay, now calculate the pressure. या एक्चुअली ये सब तुमने कैलकुलेशन एक्चुअली स्टैटिकल में कर रखी होंगी। Yes, sir. ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कर रखा है ना उधर, यस सर। तो कराना नहीं चाहिए। किया हुआ सर हमने। हाँ सर हमने इनके लिए नहीं किया हुआ है, हमने फर्मियोन्स के लिए किया हुआ सर, मतलब कि एक जनरल एक्सप्रेशन के लिए। आपने वो पार्टीशन फंक्शन से किया होगा इसको, नहीं? हाँ सर, पार्टीशन फंक्शन के लिए किया। Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो तो अभी अब प्रेशर निकाल लो। प्रेशर क्या होता है भाई, कल हमारे पास टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, पर पार्टिकल एनर्जी इनटू व्हाट, ईएफ। अभी जो निकाला एवरेज एनर्जी एन, ओके, एंड यू हैव 3/4 3/4 है कि 4/3 है, 3/4 है ना, एन 3/4 EF. Okay, now you want pressure. Okay, pressure is what, del E upon del V. Okay, माइनस में आता है इधर, माइनस TN। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आता है? ये सर वो फर्स्ट लॉ वगैरह से। फर्स्ट लॉ। गैस Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है ना। थर्मोडायनामिक्स। हाँ, so now you can write del E upon del E. Okay, now first you have to write value of N 3/4. Okay, N को ऐसे रहता है, EF का वैल्यू पुट कर दो, EF का वैल्यू। Okay, so what is the value of EF? So value of EF is what, P upon
3 pi square, okay. Sorry, value of, I'm writing value of EF. So 3 pi square, okay, V n into 3 pi square, okay, V h square h cut square c cube की पावर 1/3. ये है क्या फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला in terms of Yes, n? sir. Okay, okay. So if you know the Fermi energy, okay, now you can simply solve it, this one, and if you solve this one, this will give you, okay, this will give you E equals to, okay, ये 3/4 था कि 4/3 था, अच्छे से बताओ मेरे को. What is n this? भी आएगा सर 3/4 ही था. सर ये तो 3/4 का बट सर एक n भी आएगा ना. एक मिनट में चेक द फॉर्मूला. ओके, अब मैंने सोचा तुम कर लोगे इसको, सेम क्वेश्चन कर रहे हैं. हाँ, सो दिस इज 3/4 EF. ओके, 3/4 is EF is here. Okay, now 3/4 NEF, 3/4 here. Okay, now Fermi energy will come from here. Okay, EF, so 3 pi square by V h cut square c का पावर 1/3. ठीक ही चाहिए, और क्या चाहिए? तो एक n और भी आएगा ना. n क्यों आएगा एक और? n आएगा, सही, n बाय अंदर आएगा. ठीक है, n का एक ठीक है. now you have what, 3/4. okay, ये n 1/3, 1/3 ये क्या 4/3. okay, you have 3 pi square, okay, h cut square c cube, इन सबका पावर 1/3 है, और now you have 1/v power 1/3. okay, now you want pressure. okay, pressure will be del E upon del V. okay, Tn minus, so ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/3, 4/3 आ जाएगा वापस. ओके, सो 3/4, ओके, इंटू 1/3 इंटू n अपॉन 4/3, एंड दिस बिकम v अपॉन 4/3. और ये सब तो कांस्टेंट ही है. 3 pi square h cut square c cube 1/3. ओके, सो ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो ये p विल बी बेसिकली, ओके, So 1/4 NEF. 4/3. ये डेंसिटी है n बाय, ओके, it should come 4/3. आ रहा है क्या ये? Yes sir. हमको पावर देखना था, n और v पे डिपेंडेंस तो देखनी वो थी. कांस्टेंट की पावर 1/3 है ना. हाँ, कांस्टेंट की पावर 1/3 है ना. ये 3h नहीं था, 3h कट स्क्वायर इसकी हाँ, और ये पावर 1/3 है ना. 1/3 है जैसे ना. नीचे वाली स्टेप. नीचे यहाँ पे भी, हाँ, यस. और यहाँ से तो यही से तो सॉल्व नीचे नीचे आ रहे हैं. मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/3 आ गया, ये v/4 हो गया. ठीक है, ये डेंसिटी हो गया, बाकी तो ऐसा कांस्टेंट है. तो तुम करके देखो ना. ओके, अब आगे चले. नाउ विल सॉल्व सम कपल ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम एग्जाम. Sir. ओके, हाँ बोलिए. सर इसमें ब्रैकेट में h क्यूब c क्यूब होगा ना. कहाँ पे h³ c³ भी तो है. h² c³ की पावर 1/3 तो है. अरे यार ये कैलकुलेशन, अबे इसी तरह के कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने. अब तो तुम अपने आप करो क्वेश्चन को, मुझे थोड़ी करना है ये क्वेश्चंस. एक ही चीज को रिपीट बार बार करे जा रहे हैं हम लोग. अब ये क्वेश्चन तुमको करने हैं, मैंने तरीका बता दिया तुमको कैसे कैलकुलेट करते हैं ना. कैलकुलेशन तो आपको करनी है. ओके, सो दिस इज योर p इक्वल्स टू रो पावर 4/3. चले आगे. Yes sir. Yes sir. Now let us see some exams problem. Okay, so in question, okay, this problem, they are given a metallic nanowire, okay, nanowire. metallic nanowire, इसका मतलब आपको पता चल गया कि 1D केस है. Yes sir. 1D केस है. okay, and they are given
okay, lattice points, okay, number of atoms in lattice is one dimensional lattice, okay. So a metallic nanowire of length, okay, approximated by one dimensional lattice, okay, approximated by one dimensional lattice, okay, of n atoms. n atom का एक lattice है, okay, with lattice spacing दे रखा है, a दे रखा है lattice spacing, okay, and आपको दे रखा है dispersion relation ek is equal to E naught minus 2t cos ka, okay. So बोल रहा है calculate density of state as a function of E, as a function of E, okay. सर वो 2t cos ka लिखा है, राइट? 2t cos ka, okay, 2t cos ka, okay, t E naught सब constant है. Now you have to calculate the density of state, okay, calculate. खाली बस रिएक्शन चेंज हुआ है, बाकी तो 1D का तरीका सेम ही है जो करना आपको. सो पहला स्टेप क्या है? और ये तो फर्स्ट स्टेप. डिस्पर्शन रिलेशन गिवन है, तो सब्स्टिट्यूट हाँ. कर लेते हैं डायरेक्टली. तो पहले तो नंबर ऑफ स्टेट लिखो, नंबर ऑफ के स्टेट्स, वो Yes, कितनी हो sir. जाएगी? 12 by sorry 2k बाय 12 2 pi by 2 पाई बाय l, ओके, इनटू 2. तो जब भी हम 2 पाई बाय l लिख रहे हैं, ओके, ये आपको बात ध्यान रखनी है. जब भी हम 2 पाई बाय l लिख रहे हैं, दैट मींस वी आर गोइंग लाइक दिस फ्रॉम 0 टू हियर, 0 टू l हियर. क्योंकि जब हमने शुरू में हमने लिखा था तब मैंने बताया था k इज गोइंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम प्लस माइनस n पाई बाय l. So whenever you are writing 2 pi by l, okay, you to remember this, your length is 2l, not l, okay, because you are going both side. Like k maximum value is from plus minus n pi by l, okay. So अगर ये if you write this l by 2, then you have to, this become 4 pi by l, okay. So that you have to remember. So now we have to write the states. So this is nk, okay. Now relation already given, in energy in k relation already given, you can put just k value here. What is k value here? So k value is from this relation, I'm writing k value. So E naught minus E, okay, E naught minus E, okay, upon 2t, and cos is there, the cos inverse, okay. So k I can write cos inverse 1 by a cos inverse, okay, E naught minus E upon 2t, okay. Is it correct? yes sir. Yes, sir. Okay. that's it. Now just you have this one, you want density of state G, okay. So first you put the value here, first you put n energy states, okay. So this you can write what, 2, यहाँ solve कर दो पहले. This is 4k, okay, 2 pi by l, okay, this 2, this is 2k l upon pi, okay. So 2 l upon pi, k की जगह मैं रख रहा हूँ k, 2 l upon pi, k की जगह मैं रख रहा हूँ 1 by a cos inverse E naught minus E upon 2t, okay. शिवेश हो रहा तुम्हारा?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is your A. Okay, now you want density of state G, that will be simply dn by de. Okay, so differentiate karo and tell me the answer. Okay, so I'm writing directly answer. dn by d is my 2l upon pi a. Okay, pi a 1 upon 2t square minus e naught minus e स्क्वायर। ये आ रहा है क्या? हाँ सर। सर बस एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर इसमें आपने फर्मियोन कंसीडर किया है, इसीलिए 2 डिजेनरेसी का फैक्टर आया, राइट? हाँ हाँ ओके ओके सर, यस सर। ओके। अब यस इसको सर। अब इसमें बस अब कुछ नहीं करना है आपको, बस ये रखना है कि यहाँ पे हमारी लिमिट हम एल टू एल है। ओके, जब भी आप कर रहे हो ना तो कोई पता नहीं चले एल एल टू एल है। ओके, तो आप क्या कर दोगे, जैसे आपका नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा है इसमें एन दे रखा है, एन इज जनरली एल बाय ए। ओके, but now Yes, since sir. our origin here now n is 2l by a. Okay, so 2l by a को you write n number of particles कितना दे रखा है। okay, so this will become your 2t square minus e naught minus e का स्क्वायर। क्योंकि रिलेशन तो इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है ना, डिस्पर्सन रिलेशन तो इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है, यस सर। क्वेश्चन में बोल दिया है। वो कभी कभी ऐसा कंफ्यूज करता है बीच बीच में, लैटिस बात बात करके रिलेशन बोल देगा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जिसके लिए रिलेशन दे रखा है वही फॉलो करेंगे हम लोग। अब इसमें पॉइंट ये रहता है कि वो ये बोलता है कि एटम है, वो एटम ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ओके, उससे कोई एक्सप्रेशन करते हैं, सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में इसी तरह का, यस सर। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया था। सो आंसर इज n pi by 1/2t minus this square। ओके, बाकी लोगों का आ रहा है सबका क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. सो आई एम स्क्रब कर दूं ना। अब ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टाइप का, आपकी फिर से दिया है, वन डायमेंशनल दिया है। ओके, वन डायमेंशनल केस दिया है एंड एनर्जी रिलेशन इस बार दे दिया है, ई के इज इक्वल टू 2 ई नॉट साइन स्क्वायर के बाई 2 माइनस 1/6 साइन स्क्वायर के। ओके, तो क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, एक तो डिस्पर्सन रिलेशन दे रखा है। ओके, ई के, और बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम इन कंडक्शन बैंड इज 1/3। एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in conduction band, okay, per atom in conduction band, okay, per atom is 1/3। okay, यानी कि मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम क्या है 1/3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और n एटम है तो कितने लोग n/3 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये बोल रहा है कि अब क्यों आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो n/3 है। ओके, लैटिस कांस्टेंट दे रखा है ए आपको दे रखा है लैटिस कांस्टेंट। okay, and E0 is the constant with dimension energy constant, और इसकी डायमेंशन है, जो डायमेंशन है वो एनर्जी की डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ओके, एंड के आपको दे दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ के इज लेस देन के पाई। ओके, दैट मींस बेसिकली फर्स्ट विलियन जोन दिया है, तो के वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई ए टू माइनस पाई बाई ए। यस सर। ओके, तो हमको पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन लगाना है। नंबर ऑफ एटम दे दी, नंबर ऑफ एटम दे दिए हैं आपको, नंबर ऑफ एटम दे दिए हैं आपको n। ओके, n है तो मैं इसको n एटम लिख देता हूँ, n एटम, इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ एटम है ये। ओके, करो इसको, कैसे करोगे? हाँ सर, इसमें निकालना क्या था? इसमें निकालना है आपको फर्मी एनर्जी। ओके, कैलकुलेट द फर्मी एनर्जी, आपको निकालना है फर्मी एनर्जी। 1D है ना सर? 1D है। ओके। ओके, सो फर्मी एनर्जी निकालना है, बट बेसिकली एनर्जी रिलेशन तो आपको दे ही रखा है।
तो आपको बस क्या है, फर्मी एनर्जी का ये केएफ, यहाँ पे के की वैल्यू पुट करनी है, केएफ पुट करनी है, आपको केएफ की वैल्यू चाहिए बस. इफ यू नो द केएफ वैल्यू यू कैन राइट डायरेक्टली, इसी से कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, Yes, sir. करो कैसे करेंगे. Okay, so this is a 1D case. Sir, is it 2E naught? हाँ, Is it 2E naught? नहीं वो तो नहीं आएगा. टू नॉट कैसा आएगा आपका, कैसा आएगा. सर मैंने विलियम जोन की बाउंड्रीज को KF के इक्वल पुट कर दिया. तो यहाँ पे लिख दिया पाई, यहाँ पे पाई बाई ए कर दिया, तो ये पाई बाई 2 हो गया ना, Yeah. तो ये 1 हो जाएगा. और यहाँ पे Yes. क्या किया, Psi by A is that will be 0. नहीं ऐसा, वो 2 ये आंसर नहीं है. के पाई बाई ए तो बिलियन की बाउंड्री, ये तो मैक्स है ना, ये तो मैक्स है आपके मैक्स. ये तो के की वैल्यू है. हमारा 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 के एफ क्या है, कहाँ तक फिल करा हमने, कहाँ तक फिल किया है, जहाँ तक फिल किया है दैट इज आवर के एफ. ओके, सो Yes. ये तो मैक्सिमम वैल्यू. ओके, नाउ व्हाट इज हमारा ई एफ. ओके, सो नाउ यू नो 1D केस, दिस इज 1D केस. सो आई कैन राइट number of k states. Okay, number of k states, or nk is 2k 2 pi by l. Okay, and if I want electron number of electron state, that is 2. Okay, so this is my number of electrons. Okay, number of electron. Now in question में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि number of electron is 1/3 of number of atom. So I can write this is a number of atom, okay, by 3. So 2 से 2 cancel, so I have 2k upon pi into l. Okay, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है क्या. Yes, sir. Yes. Okay, now this is a periodic boundary conditions. Okay, periodic boundary conditions. So your number of atom is equal to basically 2l by a. Okay, so I can write number of atom 2l by a, so 3a. Okay, that is 2k upon pi l. Okay, so l से l cancel हो गया. Okay, so k क्या आ जाएगा, k will become pi by 3. What is k will come pi by 3a. Okay, pi by 3a. This is your kf. Okay, क्योंकि यहाँ पे एटम दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि k तो this is your k states. Okay, now you are filling two electrons here, 2 electrons here, 2 here, 2 here, 2 here, up to how much, up to this much electrons. Okay, so वो ये कहाँ जाके खत्म होगा. So this is so that we have to write. Okay, so n is the electron, so n up to n by 2 state. Okay, n by 2 states, that means n by 6, n atom by 6 up to n atom by 6, n atom by 6. यहाँ पे जहाँ पे ये खत्म होगा पार्टिकल भरना, दैट इज योर EF. समझ आ रहा है. जैसे ये सपोज 100 है, तो 100 ये तो मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल दे रखा है के का, बिलियन का, तो हमको 100 भरने हैं, तो ये सपोज ये 600 है एंड दिस 600, तो अप टू 50 पे जो आएगा दैट विल बी योर KF. ओके, तो इसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी दैट इज KF. सर इन एटम इक्वल टू 12 बाई ए कैसा है. भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अभी ये लास्ट क्वेश्चन में भी आपका ये है, अगर आप पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन दे रहे हैं माइनस प्लस, तो ये तो 0, तो योर लैटिस इज हियर. ओके, and here you have what, n atoms. Okay, and the gap is 1. Generally what we write when we write L equal to Na. Okay, so here we have 2L में L 2L equal to Na. Okay, so your n will be 2L upon A. This is what I'm writing. Okay, number atom तो fix है, and that's the way we are writing here. We are assuming the length is 2L. अगर आपको L लेंथ को L करना है, then ये चेंज हो जाएगा, that will be L by 2. इसको अगर लेंथ को L करना है, this will be L by 2. बात वही आएगी, आंसर तो वही आएगा. Okay,
then you can write n equal to L by A. अगर उसको L by 2 करना है, then you can write L by A. So now Okay. kf value is this one. Okay, now put this value here and tell me the answer. E naught by 4. Yes, E naught by 4. 4. Okay, So so yes, EF sir. will be Yeah. 2 E naught. Okay, pi by 3 यहाँ पे रखूंगा तो pi by 6. Pi by 6 का था 1 by 2. Okay, so 1 by 2 का square, that is 1 by 4 minus 1 by 6. Here this is pi by 3. That means root 3 by 2 का square, 3 by 2, 3 by 4. Okay, this will be 2 E naught. Okay, so you get 2. So 1 by 4 minus 1 by 8. And if you solve this one, it will come E naught by 4. EF. Okay, so this is given option A. Yes, sir. Okay. नाउ डेंसिटी स्टडी के क्वेश्चन कर लेना, कुछ और इधर कुछ और बचे होंगे. ओके, हम बाकी Yes, sir. चीजों को टच करते हैं अभी. ठीक है ना. नाउ हॉल इफेक्ट के क्वेश्चन करते हैं हम लोग. कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. Okay. So now, suppose this question came in 2016. Okay, 2016. So they say we have a rectangular sample, okay, whose length is A and the breadth is B. Okay, and we are applying a voltage in x direction, electric field in x direction. Okay, we are applying voltage, so electric field is x direction, that means current is flowing here in this direction, x and current is flowing. Okay, and across this, okay, I'm putting here Ix, current is going in this direction, and we are applying a magnetic field B. Okay, that is in z direction. Okay, so say this is my x, this is my y, okay, and this is my z. Okay, और z को टॉप करना है तो इसको z कर दो, इसको y कर दो. Okay, so say this is my sample. Okay, now what I'm doing, okay, so you're applying voltage V, and then next time what is saying, he's turning this sample. Okay, now he's turning this sample, and we are applying voltage, magnetic field, and I'm measuring the whole voltage. Okay, say whole voltage is VH is equal to V1. Okay, So Now I'm- magnetic field y के डायरेक्शन में है ना? जेट की डायरेक्शन में, जेट की डायरेक्शन Z में. अगर Z आपको के ऐसे डायरेक्शन. अगर आपको ऐसे करना है तो इसको y कर दो, वैसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको z कर दो. ठीक है, ये अच्छा. z है, ये y है, ये x. ओके, Okay, sir. okay, so basically this is your sample. Okay, ये sample, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से. Okay, z is here. Okay, and this is your y, that's why I put that side. Okay, ये अंदर की तरफ, ये this is your y, this is z. Okay, this is x and this is y. जैसे भी आपको समझ में आए, so this is your sample. Now this is sample. Now I am turning this sample. Okay, I am making this one. So I am turning this sample. Okay, now what will become? This become my length, and this become my breadth, and this become my length. Okay, again I am applying same thing, same voltage. Voltage is not changed, voltage is same. Okay, and magnetic field value also same, that is perpendicular. And this time again also I measure wall voltage. पहले wall voltage ये था V1, this is V1. Now I am measuring wall voltage, that is V2. Okay, and it says the whole voltage in this case is V2. And question में दे रखा है that V2 is V2 और V1 का जो ratio है that is 2/1. Okay, क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. पहले सैंपल ऐसा है. ओके, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये थिकनेस है. ओके, आपकी सैंपल ऐसा कर दिया तो ये अब लेंथ बी हो गया, इसका ये जो ब्रेड्थ हो गया वो ए हो गया,
और थिकनेस तो उसका वैसे ही है जो था पहले, W का W। ओके, सो नाउ दिस इज V2 by V1 2/2। सो ये बोल रहा है कि A by B का रेशियो कितना आएगा, निकालो। तो इसमें बेसिकली चेंज क्या हो रहा है मुझे बताओ। जब मैं इसको टर्न कर रहा हूं तो बेसिकली चेंज क्या हो रहा है। सर ब्रेथ विथ तो लेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो पहले जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है। और आपकी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मेरा क्रॉस सेक्शन क्या है, बड़ा हो गया। तो क्रॉस सेक्शन Yes, बड़ा sir. हो गया तो इसका मतलब क्या, करंट बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा। सर बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा। घटता है ना। I Okay. इक्वल टू NEAVD था ना, हाँ, तो so सर now एरिया बढ़ रहा है क्रॉस सेक्शन। so now basically your current is changing, okay, your sample resistance changing। पहले लेंथ ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपकी लेंथ कम हो गया क्योंकि हमारा फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है ना, हमारा वोल्टेज इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में हमको Yes, रेजिस्टेंस sir. लेना है। तो हमारा ये रेजिस्टेंस अब तो कम हो गया, पहले रेजिस्टेंस ज्यादा था। ओके, so now you have to calculate the ratio of VH by V2 by V1। okay, so मतलब first सर of all, ऐसा हाँ बोलिए। चेंज करने के बाद रेजिस्टेंस कम हुआ तो मतलब करंट ज्यादा हुआ। हाँ, जो भी है निकालो, जो भी है कब, ये तो पता चल गया ना कि क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। पहले ये था क्रॉस सेक्शन, ऐसा करना था, ये क्रॉस सेक्शन है, अब की ये क्रॉस सेक्शन है। देन when you changing this one, okay, so our current is changing in question B सेम है। तो आप V2 by V1 दे रखा है ये, now you have to calculate A by B। so सबसे पहले तो आपको लिखना है हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला। हॉल वोल्टेज क्या होता है, पहले तो हॉल फील्ड क्या होता है, हॉल फील्ड यू नो QE EE इक्वल टू EVB। ओके, VX BZ ये फॉर्मूला होता है, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो याद रखता नहीं हूँ। ओके, EH इक्वल टू व्हाट, VX BZ। नाउ यू वांट हॉल वोल्टेज, हॉल वोल्टेज क्या होता है, मल्टीप्लाई VH by B यानी कि बाय परपेंडिकुलर वाली। ओके, सो हॉल वोल्टेज क्या होता है, ब्रेड्थ, हॉल वोल्टेज ये होता है ना, ये वाला, तो मल्टीप्लाई बाय B, VX BZ। ये क्लियर है कैसा आएगा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपके V क्या होता है, V इक्वल टू ED, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में है, डिस्टेंस कितना है आपका B है, ये हो गया आपका EH इनटू B। दिस इज योर hall voltage। okay, now we have hall voltage VH, okay, then B VX BZ। okay, now I know what is JX, JX is equal to NE VX। okay, so VX क्या हो जाएगा, JX upon NE, and JX का करंट दे रखा है क्वेश्चन में, करंट इज व्हाट, करंट इज I upon A NE। तो फर्स्ट केस में करंट कितना है, फर्स्ट करंट में करंट A कितना है, व्हाट इज A इन फर्स्ट केस, BW or AW, सर BW। BW, very good। so this is your BW in first case। okay, so in first case you can write the you can put the value of VX here to say my V1। okay, so my V1 is basically B, okay, BZ, and VX is my I, इसको I1 बोल दो, okay, I1 NE BW। okay, इन सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में मेरा वेलोसिटी तो वही है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा। ओके, एंड VX तो बाकी VX क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा इसकी जगह पे, V2 क्या हो जाएगा, V की जगह मेरा A आ जाएगा, VZ सेम हो जाएगा, यहाँ मेरा I2 आ जाएगा, NE आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, BW की जगह आपकी ये हो गया AW। ओके, AW। W तो ये है ही है थिकनेस, और ये A एरिया AW। रेशियो निकाल लो V2 by V1। सर ये सर दो ही ये एरिया वाला एक बार बता देते सर, ये BW V1 में कैसा ये आएगा है, ना, हाँ V1 AW आएगा ना। भाई ये वाला केस है, ओके, इस केस में ये A है और ये W है, तो AW आया ना सेकंड केस में, AW तो आया। और फर्स्ट केस में ये आपका
ये आपका बी है, आपका क्रॉस सेक्शन ये है ना ब्रेड्थ वाला, तो ये आपका बी, ये थिकनेस है, ये बी है, तो बी डब्ल्यू आया। ठीक है, सर हम लोग फ्रंट फिगर दिखा रहे हैं ना सर। अरे भाई सैंपल तो ऐसा है ना, सैंपल तो ये है ना, ये Yes, एक बार ये sir. पहले केस में ये क्रॉस सेक्शन है, ये कितना क्रॉस सेक्शन है, बी डब्ल्यू है कि ए डब्ल्यू है, ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन Sir. कितना है भाई, लेंथ मतलब लंबा है, ब्रेड्थ मतलब छोटा है, तो बी और थिकनेस ये नहीं है क्या, ओके सर, ओके बी सर। डब्ल्यू है। ठीक है, फर्स्ट केस में ये क्रॉस सेक्शन है, सेकंड केस में ये क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ है ए और ये थिकनेस है, तो ए डब्ल्यू है। निकालो रेशो v2 by v1, v2 by v1, v2 is what, a bz, ओके। अच्छा एक चीज बताओ, करंट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, करंट सेम नहीं रहेगा। करंट क्यों रहेगा? हाँ, सेम सर कैसे रहेगा? तो फिर अच्छा तो फिर अभी निकालो v2 निकालो, तो v2 है ab2 i1 ne bw, ओके। अब i1 की वैल्यू कितनी है, i1 क्या होगा, a bz ne bw, i1 की वैल्यू कितनी है, i1 हमारा वोल्टेज हमने v लगाया, ओके, हमने वोल्टेज सैंपल पे v लगाया था, और v बाय r, और r क्या है, r, और r क्या है, रो r एल is बाई a bz ne bw, ओके। वी आर क्या है, रो, रो एल, रो तो सेम है मटेरियल का, रो एल, एल क्या है मेरा ए, आर एल बाय ए, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना था फर्स्ट केस में बी डब्ल्यू, ओके। तो सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, सर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपने कैसे लिखा है? कौन सा वाला, ये वाला, ये मैंने आई वन की जगह लिखा अपने वी अपॉन आर, सैंपल मेरा ये है ना वी अपॉन आर, और आर क्या होता है, सर ये आर, ये V2 मतलब सेकंड केस का हॉल वोल्टेज है ना? अच्छा सॉरी सेकंड केस का है, सेकंड केस में चेंज हो जाएगा, ओके। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू की जगह पे ए डब्ल्यू, ओके गुड, ओके। सेकंड केस में, सो दिस इज और योर, सर एक ही जगह बी हो जाएगा ना? हाँ एक हाँ, ही एक ही जगह बी हो जगह जाएगा। एक ही जगह बी हो जाएगा, वेरी गुड। सेकंड केस में एक ही जगह बी हो जाएगा क्योंकि आपकी बैठ नहीं जा रहा है, ओके। सो दिस बिकम योर व्हाट, अब कुछ कुछ कट रहा है क्या इसमें, ओके। एंड डब्ल्यू डब्ल्यू हम्म, डब्ल्यू कट जाएगा सर किसमें? डब्ल्यू डब्ल्यू कट रहा है, डब्ल्यू कट रहा है, और ए नहीं कट रहा, क्या ए नहीं कट रहा ना, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी जेड वी, ओके, एन ई रो बी स्क्वायर, ये आ रहा है क्या, यस सर यही आएगा। ओके। सिमिलरली इसमें इसमें लिख दो, फर्स्ट केस में लिख दो, सेकंड केस में लिखा हमने, फर्स्ट केस में सर इसको, हाँ सर आपने बोर्ड के राइट साइड में बॉटम में V2 के एक्सप्रेशन लिखा है, हाँ, और तो जो उसमें आपने बी अभी ऊपर डब्ल्यू V2 का लिखा है उसमें तो ए AW है, डब्ल्यू उसमें होगा। यहाँ पे ए डब्ल्यू है क्या, यस तो सर। ये भी सही करो, ए डब्ल्यू, तो ए से कैंसिल हो गया, ओके, तो ए कैंसिल हो गया, चलो अब ठीक है, और बी नहीं आएगा, बी रहेगा इधर ही, एक ही बी रहेगा, मुझे वापस करने दो इसको ना पूरा, मैंने इसको उल्टा कर दिया ना, तो दिस इज ए बी जेड, ओके, आई टू, ओके, एन ई ए डब्ल्यू, ऐसे रहने दो, वी टू रहने दो, और सेकंड केस, फर्स्ट केस में क्या है, वी क्या है, वी वन क्या है आपका, वी वन बताओ क्या है वी वन, व्हाट इज वी वन, बी 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 जेड हाँ, आई वन एन ई एन बी ई डब्ल्यू बी बी डब्ल्यू, डब्ल्यू। बस डिवाइड इनको डिवाइड कर दो, वी टू बाई वी वन डिवाइड कर दो इनको, क्या आ रहा है, सो ए बी जेड आई टू एन ई ए डब्ल्यू, ओके, सो एन ई बी डब्ल्यू बी बी जेड आई वन, ओके, बी जेड कैंसिल, ए कैंसिल, डब्ल्यू कैंसिल, ओके, बी कैंसिल, क्या बचा, एन ई कैंसिल, क्या बचा, I2 by L1। आई टू अपॉन आई वन, ओके। अब आई टू क्या होता है, आई टू इज बी अपॉन आर, बी अपॉन आर वन, बी अपॉन आर टू, ओके, सो बी कैंसिल हो गया, दैट इज बिकम आर टू अपॉन आर वन, ओके। ना आर टू क्या है, आर टू इज रो, second first b, okay, b, and cross section is what, cross section is this one,
L into A into W, and here R1 is what, rho A, okay, B into W, so rho भी कैंसिल हो गया, ओके, तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा V2 by V1, ओके, ये A स्क्वायर बाय ये अब क्या आ रहा है, निकाल के बताओ कितना आ रहा है, तो b square by a square. B स्क्वायर बाय A स्क्वायर, ओके, B स्क्वायर बाय A स्क्वायर V2 upon V1, सर उल्टा तो नहीं आया देखो, सही है सर सर। वहाँ पे I2 में हम B by R1 लिखे हैं। हाँ I2 में भी R2 लिखना पड़ेगा ना, R2 R1, ओके, तो R2 में क्या आएगा यहाँ पर, R2 ये वाला केस है ना मेरा, R2 पर ये केस है, तो मेरा ये आ जाएगा एरिया क्या आ जाएगा मेरा, क्रॉस सेक्शन, तो लेंथ तो ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा, AW तो है, अब ठीक है क्या, सर चेक करो, दोनों का क्रॉस सेक्शन कैसे सेम होगा? W W तो थिकनेस है यार, क्रॉस सेक्शन थोड़ी ना है यार, ये सैंपल है अभी, ये ब्रेड है, ये थिकनेस है, थिकनेस तो वही रहेगी सैंपल में, और ये हो जाएगा ये, ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए V2 by V1 दे रखा है 2/1, ओके, तो A by B आना चाहिए √2 1, तो ये A स्क्वायर B स्क्वायर आना चाहिए, ये वैल्यू A स्क्वायर B स्क्वायर आना चाहिए, क्या कुछ A स्क्वायर B स्क्वायर आना चाहिए, √2 आएगा। हाँ 1/√2 आएगा सर। नहीं 1 A बड़ा है ना, A बड़ा है, सर वो R2 by R1 की जगह R1 by R2 होगा। इसको ये हो गया ऊपर I2 upon, हाँ उल्टा हो गया ना, करंट क्या है, करंट V2 upon I2 upon R2 आएगा, नीचे आएगा ना, सही तो लिखा था मैंने, ओके, नो सर वो ये वाला, R2 by, हाँ यस सर। ये R2 आएगा, ठीक है, अब इसमें R1 निकालो कितना आएगा, तो R1 प्रोपोर्शनल था 1 है ना, अब यहाँ सब गड़बड़ हो गया ना, तो ये हो गया रो A, क्रॉस सेक्शन कितना था इसमें, क्रॉस सेक्शन था BW, ओके, R2 में क्या था, रो ये था B, क्रॉस सेक्शन था AW, अब कितना आ रहा है, A स्क्वायर B, अब A स्क्वायर पर B स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू 2/1, so A by B equals to √2/1, this answer. क्लियर है क्वेश्चन, Yes, sir. यस सर, Yes, इसका sir. डायमेंशन सर डायमेंशन क्या किसकी, क्लियर है सर, क्लियर है। सुल्तान यस सर, क्लियर है भी, यस सर। ओके, तुम खुद भी कर सकते हो, वो ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये आपको ये डायरेक्शन याद रखनी है बस, ठीक है, कोई और बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसमें कोई इतना। सो नाउ दिस इज योर हॉल इफेक्ट पे क्वेश्चन आया था, हॉल इफेक्ट पे क्वेश्चन और आया था, लेट मी चेक दैट क्वेश्चन, सो हाँ एक अच्छा क्वेश्चन आया था हॉल इफेक्ट पे, इस हॉल इफेक्ट की जो ज्योमेट्री है ना, जो मैंने क्लास में नोट्स बनाई थी, वो ज्योमेट्री याद रखना, मैं फिर बना देता हूँ उसको, तो वो ज्योमेट्री याद है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल ही होते हैं। So what was the geometry I made? Okay, now this question came in 2011. Okay, so we have this sample. Okay, and this we have this one. Okay, so this is my thickness, this is my thickness W, okay, this is my length L, and this is my breadth B, okay, ये आपको याद रखना है, करंट कहाँ जा रहा है, वोल्टेज B कहाँ है, और आपका ये जो Y कहाँ पर है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ओके, सो एक 2012 में क्वेश्चन दिया है, उसने बोल दिया है कि एक हॉल सैंपल है, ओके, हॉल इफेक्ट को वो मैग्नेटिक फील्ड को यूज करने के लिए यूज कर रहा है, ओके, एंड द सेंसिटिविटी ऑफ ए सैंपल, सेंसिटिविटी दे रखा है उसने, सेंसिटिविटी इज गिवन इक्वल टू 500 मिलीवोल्ट डिवाइड बाय टेस्ला, ओके, मतलब पर टेस्ला के लिए आपको इतना हॉल वोल्टेज मिलेगा,
दिस इज व्हाट सेंसिटिविटी क्या है, हॉल वोल्टेज, ओके, हॉल वोल्टेज पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है पर यूनिट टेस्ला के लिए उसको 500 मिलीवोल्ट सैंपल में मिल रहा है, जो मेजर कर रहा है हॉल वोल्टेज। तो ये सैंपल की, ये हमारा सेंसिटिविटी है सेंसर की, ओके। नाउ करंट, ही सेज द करंट वैल्यू इज I is equal to 1 milliampere, okay. So you're asking what is the value of current carrier density in the sample। आपको सैंपल में कैरियर डेंसिटी निकालनी है, निकालो, कैसे निकालोगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बीच में करंट फ्लो कर रहा है Yes, sir. 1 मिली एम्पियर, ओके, सैंपल में बी लगा हुआ है, ओके, और जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है, बी कर रहा है, यू आर गेटिंग हॉल वोल्टेज। हॉल वोल्टेज कितना है? हॉल वोल्टेज सेंसिटिविटी सैंपल कितना है? हॉल वोल्टेज इज दिस वन, 500 मिलीवॉट पर टेस्ला। मतलब समझ लो कि ये सैंपल सेंसर कैलिब्रेट कर रखा है। अगर मेरे पास 500 मिलीवॉट आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है। अगर 1 मतलब 0.5 वोल्ट्स आ रहा है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। अगर मेरे पास हॉल वोल्टेज 1 वोल्ट आ रहा है, दैट मींस माय मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला। सर W W क्वेश्चन में दिया है आपको 1 माइक्रोमीटर। W इज गिवन 1 micrometer, okay, that is 1 into 10 to the power minus 6 मीटर, ओके। तो अब निकालो, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होगा? हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा? क्या H फॉर्मूला equals होगा? to VD VW. B into Vx into Bz, ओके। एंड B को मैं लिखता हूँ मैं J equal to NE Vx, okay. So I can write here Jx upon Ne, okay, Bz। तुमको फॉर्मूला याद होगा, मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ओके। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, ओके। एंड दिस इज B upon Ne Ix, ओके, Ix upon A कितना हो जाएगा इस बार? WB into Bz, ओके, VH। नाउ VH upon BZ, B आपको दे रखा है क्वेश्चन में, सेंसिटिविटी दे रखी है, ओके। B से B कैंसिल हो गया, तो I NE एंड दिस W। तो I आपको दे रखा है क्वेश्चन में, I कितना दे रखा है आपको? 1 मिली एम्पियर दे रखा है क्वेश्चन में। NE आपको निकालना है, N आपको निकालना है, E आपको पता ही है 1.6 into 10 to the power minus 19, ओके। W आपको दे रखा है कितना? 1 into 10 to the power minus 6 मीटर। और VH आपको दे रखा है कितना? 500 मिलीवोल्ट्स पर मैग्नेटिक फील्ड। सो आपको खाली निकालना है कितना? N निकालना है, बताओ कितना आ रहा है N? सर हाँ, सर मेरे एक वो था सर, अगर मतलब यही फिगर में प्रीवियस से रिलेट किया, L की जगह A था और B की जगह B था ना? बस यही था, और क्या। और वो W इसी- था हमारा। मेरे को W में कंफ्यूजन हुआ। W Okay. ये है ना, W थिकनेस है आपकी। Yes, तो ये जब इतना सैंपल लेके बता रहा हूँ फिर भी तुमको क्लियर नहीं हो रहा है। देखो ना, ये लेंथ है, ये थिकनेस है, ये ब्रेड्थ sir. है। तो क्रॉस Yes, जो sir. पहले केस में क्रॉस सेक्शन क्या था? B थिकनेस into इनटू W. ब्रेड्थ, BW था Yes, पहले sir. क्वेश्चन में। सेकंड केस में आप इसको हमने ऐसा कर दिया, तो आपकी Yes, sir. थिकनेस तो वही की वही है, Yes, ओके। sir. थिकनेस तो ये वही की वही है, और ये क्रॉस सेक्शन हो गया आपका। क्रॉस Yes, सेक्शन तो sir. AW हो गया बस, और क्या। अब Okay, ब्रेड्थ, sir. ये ब्रेड्थ हो गया था। Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए Okay, मैं कह रहा thank you, हूँ sir. ये आपको सैंपल याद रखना है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो उसको ऐसे याद रखना है। देन यू कैन डू इट एनी क्वेश्चन ऑन हॉल इफेक्ट। Sir, 1.25 into 10 to the power 22. यस, आंसर इज योर N is equal to 1.25 into 10 raised to power 22 मीटर क्यूब, पार्टिकल मीटर क्यूब। ये आंसर है, Thank you, sir. ओके। सो वी कैन स्टॉप हियर नाउ। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट।